Bismillahirrahmanirrahim, and it is the MS Office and class number 2. It is MS Office class number 2, and this class number 2 is going to focus upon the start of Microsoft Word, and this MS Word, Microsoft Word, will be the start of the day. What happened in the previous class? What happened in the previous class? In the previous class, we, number one, introduced the Microsoft Office, what it was overall, and then the number of branches of the MS Office. And then we explained, introduced the MS Office and then the branches of MS Office, and explained the uses of specifically number one, the MS Word, number two, MS Excel, and number three, the MS PowerPoint as well. So it is a quick recap of what all we studied in the last class. It is a quick recap of that, and it is the agenda of today's class. So both things will be clear now. So we are going to start what is MS Office today. And in the last class, after the lecture, as per my commitment, I have dispatched after the last class. After the first class will be a better way. After the first class, we dispatch you people with the recorded lecture of class 1 along with plus writing notes, those I developed in the class, plus the keyboard shortcuts as well on the word format. So we have dispatched the tickets. आखिरी क्लास में हमने 3 चीजें dispatch. एक पहली क्लास की रिकॉर्डिंग, नंबर 2 हम लोगों ने आपको डिस्पैच किया है क्लास 1 के अंदर जो टाइपिंग की थी हम लोगों ने, और नंबर 3 मैंने कीबोर्ड की शॉर्टकट जो है वो आपको writing that what you need to exercise on this whole this one I mean the MS Word. I'm going to start the Word class from today, and we are going to talk about the interfaces, and then after the interface and the interface keywords, then we are going to work on after that. Once the word will be over, then I will be rediscussing the application of the keyboard shortcuts on the data. So आज हम start करने वाले हैं अपने क्लास को इंटरफेस को समझने से, और फिर इंशाल्लाह हम जब MS ऑफिस खत्म कर लेंगे तो फिर हम शॉर्टकट्स को एक बार एक्सरसाइज कर लेंगे. जब MS वर्ड को यूज करना स्टार्ट करें तो व्हाट शुड, मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ is equal to RAND, and in bracket I'm going to write the number, and when I will press the auto text will be inside. मैं फिर रिपीट कर, जब हमें MS वर्ड में काम शुरू करना है तो हमें एक कमांड लिखनी है. टॉपिक व्हाट दिस कमांड इज इक्वल टू RAND random bracket start bracket close. दरम्यान में जो नंबर आप लिखेंगे, these number of paragraphs will be given to you by MS Word, और ये जो आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे इन पे फिर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट कीज को भी, इवन इंटरफेस को भी, एंड आप फर्दर समझ सकते हैं. सो RAND मींस रैंडम एंड इट इज 3. अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो 4 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे. मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे. 5 लिखूंगा तो 5 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे. तो मैंने लिखा है रैंडम
इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट 4 एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड प्लस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ इसके बाद जाके तो मुझे देखिए कि MS वर्ड ने कितने दे दिए हैं पैराग्राफ। MS वर्ड हैव गिवन मी 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ एंड 4 पैराग्राफ। तो ये ऑटो जनरेटेड पैराग्राफ्स मेरे सामने आ गए हैं। अब इन ऑटो generated paragraphs people, I will try to work on the interface and make the people understand how the interface overall works. So now ये जो भी आपके सामने है आगे सामने जो बने हुए हैं ये 4 paragraphs. The first thing on the home you see, the first thing is the adjustment of the font and the type of font. If you see here on this button, if you check this one, here it is written the font name and here it is the font size. So now if we need to increase the change the font type, what we have to do, we have to select the text first. हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट होगा? हम अपने कीबोर्ड पे, हम अपने माउस के जो लेफ्ट बटन है जो हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे है उसको प्रेस करते हैं और फिर छोड़ते नहीं है। अपने माउस को ड्रैग करके बिल्कुल जहां तक हमने चेंज करना है वहां तक हमने इसको ले जाना है और जहां पर हम इसको छोड़ेंगे अपने क्लिक के बटन को वहां तक वो सिलेक्ट हो जाए। Once the text is selected, एक बार text select हो गया, so now look at this one. It is the Calibri. We press this button, and now the different type of fonts are in front of us. हम जिस font को change करना चाह रहे हैं, हम उस font तक उसको लेके जा सकते हैं। अब अगर आप देखें, तो मैंने यहाँ पे जो font नंबर आयरन font है जो नंबर 4 पे आ रहा है, मैंने इस font को या मैंने Arial को select कर लिया। मैंने press area this document जिसको मैंने select किया था वो एरियल में कन्वर्ट है। अगर मैं बात करता हूँ सारे के सारे टेक्स्ट की, तो फिर मुझे सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल द होल इज नाउ सेलेक्टेड, आई विल गो बैक अगेन एंड देन आई विल प्रेस एरियल एंड द होल डॉक्यूमेंट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एरियल। अगर मैं यहाँ पे सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, हमारे पास शॉर्ट कीज में आपके पास लिखा हुआ आया होगा जो आपने शायद पढ़ी भी हो। शॉर्ट कीज में पे जाके करूँगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा। इट इज कंट्रोल, इट इज कंट्रोल, इट इज कंट्रोल ए एंड नाउ दिस कंट्रोल ए कन्वर्ट्स द होल टेक्स्ट सिलेक्टेड। पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑन पे खड़ा हूँ स्टार्ट में, अगर मैं प्रेस कंट्रोल का बटन दबाऊं और कंट्रोल के बटन दबाए दबाए तो मैं ए करूंगा तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। तो अगर आपने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए विल बी द बेस्ट फंक्शन। लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक जगह को सिलेक्ट करना है और फिर उस स्पेसिफिक जगह को सिलेक्ट करने आप उसमें कंट्रोल ए का फंक्शन काम नहीं करेगा बिकॉज कंट्रोल इन सिलेक्ट तो वो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाए। तो अब हमने फॉन्ट चेंज इज फ्रॉम दिस प्लेस नंबर 1। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस इट अगेन। सो नाउ अब मैंने पैराग्राफ को रखा एरियल में, मैं पैराग्राफ 2 को convert कर देता हूँ किसी और font में। For an example, I'm going to convert it in the bookmark old style, and then I'm going to convert the paragraph number 3. I will select it first, and then I will convert this into irony, and then I will be going to select paragraph number 4. पर मैंने paragraph number 4 को कर दिया है आगे। For an example, मैंने sans FB में कर दिया है या मैं किसी और में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। For an example, it is the Berlin sans FB, पर मैंने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया और मैंने 4 फॉन्ट्स अब यूज किए हैं, चारों के चारों पैराग्राफ इन वन डॉक्यूमेंट। वी कैन यूज मल्टीपल फॉन्ट्स बट इफ यू वांट टू यूज द मल्टीपल फॉन्ट्स इन वन डॉक्यूमेंट देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको मल्टीपल फॉन्ट्स को यूज करने के लिए फिर हर एक स्पेसिफिक जगह को जहाँ पे आप वो फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां पर आपको उस स्पेसिफिक जगह को सिलेक्ट करना होगा माउस से। फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस। So you will insert, you will keep on selecting the places. आपको हर जगह को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पूरे का पूरा फॉन्ट एक जैसा रखना है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का, तो उस सूरत के अंदर आपके लिए माउस से ज्यादा अच्छा फंक्शन होगा। You will press Control A and it means that select all, और वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। We will go to the font style. अब जब मैं फॉन्ट स्टाइल पे चला गया हूँ, मैंने वहां से बर्लिन सैंस एफबी को अप्लाई किया और पूरे के पूरे फॉन्ट के ऊपर मैंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर उस फॉन्ट को अप्लाई कर दिया है। सो इट इज व्हाट द एडजस्टमेंट ऑफ द फॉन्ट टाइप, नॉट द फॉन्ट साइज। इट इज द फॉन्ट टाइप नॉट द फॉन्ट साइज। ओके, एंड हाउ आई डिड इट, मैंने इसके लिए आई डिड व्हाट,
मैंने इसके लिए किया है select all और use mouse for specific area, for the specific area, and then I worked on change font from the interface. And the same document will reach to you once the class will be over. मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को बाद में समझने में आसान हो। So now go ahead. After changing the style of the font, now we enter into phase 2, and this phase is the change in the font size. If we need to change the font size now, what will happen now? How we can do it? Along with बिल्कुल इसके साथ देखिए मैंने इसको कर्सर को ग्लो किया है, यहाँ पे फॉन्ट का टाइप था और यहाँ पे फॉन्ट का साइज। जब हम फॉन्ट के साइज को प्रेस करते हैं एंड ये मैंने प्रेस किया और आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस को, आप इन ऑप्शंस के दरमियान चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे। अगर आपने इन फॉन्ट साइजेस को अप्लाई करना है, फॉर दैट मैटर व्हाट यू हैव टू डू, सारे को चेंज करना है, कंट्रोल ए, सारा सेलेक्ट हो गया एंड अब आप यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज करते रहें। आप जिस फॉन्ट के साइज पे जाएंगे उसके मुताबिक आपका फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा होता रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम फॉन्ट का साइज सारे डॉक्यूमेंट पे चेंज ना करें, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक स्पेसिफिक एरिया जो है उसको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, बट आई एम डूइंग, मैं यहाँ के फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ बिकॉज देयर मस्ट बी और देयर मे बी सम इम्पोर्टेंट थिंग देन आई वांट टू शो द पीपल मोर। सो मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिक लाइन के फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया बाकी से, एंड नाउ इट इज बीइंग लुक्ड इनटू, और इट इज लुकिंग लाइक, लग रही है जैसा कि ये एक डिस्टिंक्टिव लाइन है इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में। ऐसे ही मैं एक दो लाइंस और कर सकता हूँ, उसका फायदा ये होगा कि पीपल विल कम टू नो दैट दीज एरियाज कंटेन समथिंग वेरी डिफरेंट और इम्पोर्टेंट। इसको कहते हैं सिग्नलिंग लैंग्वेज। हमने कुछ जगहों पर अपनी लाइंस को ब्रॉड कर दिया है एंड दीज ब्रॉड लाइंस आर नाउ हाईलाइटिंग दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट और इम्पोर्टेंट और विच रिक्वायर्स ज्यादा अटेंशन की जरूरत है इन जगहों को। तो मैंने वहाँ का साइज, फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, और इन दिस वे पूरे फॉन्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइंस, यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है आपको बाकी के सारे डॉक्यूमेंट से। लुक एट दिस लाइन एंड लुक एट दिस लाइन। सो दिस कैन इवन बी अप्लाइड दैट आप फॉन्ट साइज कुछ लाइनों का भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसके लिए कंट्रोल ए का फंक्शन नहीं होगा, इसके लिए आपको अपने माउस से काम करना पड़ेगा। अगर माउस वर्क ठीक होएगा तो दिस कैन बी वेरी इजीली डन। सो नाउ वी मूव अहेड एंड आई एम प्रेसिंग इफ यू वांट टू कन्वर्ट बैक, मैंने ये शॉर्टकट्स में दिखाया है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट बैक, convert back to previous state. What you have to do, you have to work on control Z will be the function, और आप control Z करेंगे तो वापस चले जाएगा फॉन्ट पे। सुनो, अगर आपने इसको दोबारा से वैसे ही करना है जैसे पहले था, what you have to do, you will press control Z. I will not do it in the control Z function, because अगर मैं control Z करूंगा तो मेरा ये convert back previous मैंने आपके लिए लिखा है, ये भी सारे का सारा खत्म हो जाएगा एंड देन आई विल सफर। सो मैं इसको मैनुअली चेंज कर रहा हूँ आपके लिए। सो मैंने इसको दोबारा से चेंज कर लिया। जी, एंड आई एम बैक ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब अगर मैंने इन सारी लाइंस पे जो मैंने अभी चेंज किए हैं इनको एक साथ चेंज करना चाहता तो व्हाट आई वुड हैव डन, मुझे क्या करना चाहिए था, आई एम गोइंग फॉर कंट्रोल जी, फिर से दोबारा बड़ा फॉन्ट हो गया, कंट्रोल जी, सारा फॉन्ट बड़ा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल नाउ, और मैं कंट्रोल को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लिया, अब मैं अपने माउस से वापस जा रहा हूँ अगली लाइन पे, यू से लेके यहाँ तक मैंने फिर दोबारा उसको भी कर दिया। मैंने कंट्रोल दबाया एंड कंट्रोल दबाए दबाए मैं नीचे आ रहा हूँ और मैंने निचली लाइन को भी कर दिया। और अब जब मैंने तीसरी लाइन सेलेक्ट कर ली माउस से, अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया। अब वो सारी जगहें जहाँ का फॉन्ट मैंने बड़ा किया था वो सारी की सारी लाइन सेलेक्ट है, ये होंगी कंट्रोल के बटन को दबा के माउस के साथ। सो कंट्रोल एंड द माउस गेम, एंड देन जब मैं यहाँ से अब चेंज कर रहा हूँ 11, तो सारी लाइंस एक साथ कन्वर्ट हो गई हैं। सो इफ आई वांट टू चेंज मल्टीपल प्लेसेस इन अ सिंगल क्लिक,
आई हैव टू डू वर्क बाय यूजिंग द कंट्रोल फंक्शन। मैं माउस से सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आई विल प्रेस कंट्रोल एंड देन जहां जहां मैंने तब्दीलियां करनी है मैं माउस को वहां पे हाईलाइटिंग करता रहूंगा उन प्लेसेस की, लेकिन कंट्रोल को छोड़ूंगा नहीं। तो जितनी जगहें हाईलाइट मैं कर सकता हूँ हाईलाइट हो जाएंगी, उन जगहों पर जो तब्दीली करना चाहता हूँ एक सिंगल शॉट में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने कोई और लाइन सेलेक्ट करनी है और जो काम करना मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लिया। अब कंट्रोल को प्रेस किए किए मैंने अगले वाले सेंटेंस की पहली लाइन, अगले वाले पैराग्राफ की फिर पहली लाइन, उससे अगले वाले पैराग्राफ की पहली लाइन, सबको सिलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ से मैं इनके फॉन्ट साइज को बड़ा कर रहा हूँ और अब देखिए वो सारा इकट्ठा बड़ा हो गया और सारा इकट्ठा छोटा हो गया। तो इट इज वर्ट आई थिंक ये वो जगह है, ये वो चीज़ है जिसमें आई मीन मैं एक वक्त में मल्टीपल प्लेसेस पे तब्दीलियां कर सकता हूँ। सो माउस से सिलेक्ट करेंगे और फिर हम माउस से सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम कंट्रोल के बटन को दबा लेंगे और कंट्रोल के बटन को छोड़ेंगे ना। जिन प्लेसेस को हमने हाईलाइट करना है उनको हम कंट्रोल के बटन को दबा के हाईलाइट कर लेंगे एंड देन वी विल एक्सरसाइज, वी विल एग्जीक्यूट द चेंज जो हम करना चाहते हैं वंस फॉर ऑल एट ए ग्लांस, एक साथ करेंगे। सो नाउ next one is here the A button A. So if you see here, it is A and it is A with the downward arrow. अगर मुझे font size का नहीं पता, मुझे नहीं पता 11, 12, 13, 14, 15, 16, मुझे नहीं पता कौन सा फॉन्ट साइज अच्छा लगेगा, बट आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट अकॉर्डिंग टू जो मुझे सुटेबल लगे और मैं उसको वहां रोक दूं, तो व्हाट शुड आई डू? मैं सेलेक्ट करूंगा एक टेक्स्ट, सिलेक्ट कर लिया मैंने पैराग्राफ नंबर 1 के टेक्स्ट को और मैंने अपवर्ड एरो दबाना शुरू कर दिया, फॉन्ट इंक्रीज होना शुरू, जहां मुझे भला लगे मैं उसको वहां रोक सकता, जहां भला लगे मैं वहां से रोक सकता, मैं वहां रोक सकता हूँ। सो नाउ आई एम नॉट वर्किंग ऑन द फॉन्ट नंबर 11, 12, 13, 14, 15। सो नाउ अब मैं अपवर्ड एरो से अपने फॉन्ट को इंक्रीज कर रहा हूँ और अपने फॉन्ट को डाउनवर्ड एरो से डिक्रीज कर रहा हूँ, मुझे जहां अच्छा लगे मैं उसको रोक सकता हूँ। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप किसी को यहाँ से करते हैं तो पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है 30, फिर एंटर, अब देखते हैं ठीक, फिर दोबारा हम गोइंग ओवर दियर, फिर हम गोइंग 15, फिर एंटर। सो मुझे फिर टाइप करना पड़ता, फिर एंटर, फिर टाइप, फिर एंटर, फिर टाइप, फिर एंटर। लेकिन जब मैं अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरोस को यूज कर रहा हूँ तो अब मुझे बार बार जाके फॉन्ट का एंटर साइज एंटर करके और फिर दोबारा फॉन्ट का साइज इंसर्ट करके फिर एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक सिंगल प्लेस से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ। सो दिस कैन मेक और ब्रिंग एन एफिशिएंसी, मेरे काम में एफिशिएंसी लेके आ सकता है अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो बटन दैट इज गिवन ऑन द इंटरफेसेस। नेक्स्ट बटन अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक बड़ा वाला ए बना हुआ और साथ एक छोटे वाला ए बना, बड़ा ए एंड छोटा ए दोनों चेंज केस को डिफाइन। क्या मतलब चेंज केस? आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का हर पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ हर वर्ड कैपिटलाइज्ड हो जाए, तो आप इधर से एक सिंगल क्लिक से सारे को कैपिटलाइज कर, सारा लोअर लेटर्स में हो जाए, एक सिंगल क्लिक से सारा लोअर लेटर, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाए और बाकी सारा छोटा हो, आप इवन ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया है पहले वाला पैरा, सिलेक्ट हो गया, अब मैं आ रहा हूँ, ये बड़ा ए है, कैपिटल ए और साथ एक स्मॉल ए है, मैं प्रेस करूँ इस एरो पे, मेरे सामने यहाँ पे आपके सामने 5 केसेस आ। द केस 1 इज सेंटेंस केस। सेंटेंस केस वो केस है जिसमें आप जिस तरह नॉर्मल अंग्रेजी लिखते हैं वैसे लिखेगा, यानी कि पहला अल्फाबेट एक वर्ड का जब भी फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस शुरू होगा वो कैपिटलाइज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप स्टार्ट पे देखते तो यहाँ पे ओ बड़ा है पहला सेंटेंस का, यहाँ लग गया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद यू का देखें तो वाई बड़ा है, यहाँ पे देखें फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद वेन का डब्ल्यू बड़ा है, एंड देन यहाँ पे फुल स्टॉप आगे देखे, यहाँ पे देखिए यू का वाई बड़ा है, जहाँ फुल स्टॉप आएगा फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे यू का वाई बड़ा है। मैं हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा चेंज का टू बड़ा है, आगे देखिए फुल स्टॉप के बाद टू का फिर टी बड़ा है। तो आप जो नॉर्मल अंग्रेजी में हर एक सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल करें, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंटेंस केस। ये लिखा हुआ है सेंटेंस केस। नंबर 2 इज द लोअर केस। आपको कोई सिंगल अल्फाबेट भी बड़ा नहीं चाहिए। When you will press the lower case, the whole of the document will convert into the small letters. मिसाल के तौर पे जरा गौर से देखिएगा, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू प्रेस द लोअर केस। अब यहाँ पे देखिए ऑन जो पहले ओ बड़ा था छोटा हो गया, यहाँ पे यू का वाई बड़ा था छोटा हो गया, वेन का डब्ल्यू बड़ा था छोटा हो गया। सारे के सारे डॉक्यूमेंट में जो मैंने सेलेक्ट किया था, जब मैं लोअर केस करूंगा तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट लोअर केस में आएगा, कोई एक सिंगल वर्ड भी
चाहे वो इंग्लिश रूल के मुताबिक सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट ही क्यों ना हो, वो भी पढ़ा नहीं होगा। पूरे का पूरा केस विल कन्वर्ट इनटू द लोअर केस। फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, एंड देन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द नेक्स्ट वन, एंड इट इज हियर अपर केस। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। The whole document is now converted into the capital letters. Number 3, फिर select कर रहा हूँ and I'm moving further. Capitalize each word. अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखिएगा हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटलाइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑन ओ बड़ा है, डी का टी बड़ा है, इंसर्ट का आई बड़ा है, टैप का टी बड़ा है, डी का टी बड़ा है, गैलरीज का जी बड़ा है, इंक्लूड का आई बड़ा है, आइटम्स का आई बड़ा है। और इन दिस वे आई एम प्रोग्रेसिंग, आई एम प्रोग्रेसिंग, आई एम प्रोग्रेसिंग। मैं आगे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ एंड जा। इज इट फाइन विद यू पीपल? आई बिलीव अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो इस तरह से आप हर एक वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है उसको आपने कैपिटलाइज कर लिया बाय दिस फंक्शन ऑफ व्हाट इज दैट, कैपिटलाइज ईच वर्ड। आगे आ गया टॉगल केस। पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे, ये पहला अल्फाबेट छोटा, बाकी हर वर्ड के सारे अल्फाबेट बड़े। टॉगल केस अगर आप गौर से देखें तो ऑन का ओ छोटा है, एन बड़ा है, डी का टी छोटा है, एच ई बड़ा है। इट इज द टॉगल केस। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस बटन जिसके साथ कैपिटल ए और छोटा ए लिखा हुआ है लोअर केस, इसको प्रेस करके आप केस चेंज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस का। एंड द 5 ऑप्शंस अवेलेबल हियर आर नंबर 1 sentence case, number 2 the lower case, number 3 the upper case, number 4 capitalize each word, and number 5 is toggle case. तो आप इन 5 केसेस से अपने आप को जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन या रीडिजाइन कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग बैक टू द ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट वाज व्हाट द सेंटेंस केस। तो मैं नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गया हूँ जैसा मेरा डॉक्यूमेंट था। सो नाउ sometime I need to bold the document. Sometime I have to highlight a specific word, underline the document. What should I do? अगर तो मैंने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो हियर इज अ बटन की। आई विल प्रेस बी और ये पूरे का पूरा जो आपका पैराग्राफ है ये बोल्ड हो गया है। पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट का जो स्पेसिफिक एरिया आपने सिलेक्ट किया था माउस के जरिए वो बोल्ड होता है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना चाहते हैं कंट्रोल ए एंड देन बोल्ड प्रेस करेंगे तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट बोल्ड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ कुछ जगहों को बोल्ड करना चाहते हैं तो जैसे सर ने बताया था आप पहले पहली लाइन सिलेक्ट कर लें माउस के साथ, अब कंट्रोल का बटन दबा लें। अब आप जिन जिन लाइन्स को अपने माउस के साथ घुमाती जाएंगी, जिन 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 लाइन्स को आप लोग बच्चे अपने माउस के इंडेक्स बटन के साथ प्रेस करके घुमाते जाएंगे वो जगह सिलेक्ट हो जाएंगी। नाउ यू विल प्रेस बोल्ड, तो वही लाइंस बोल्ड होंगी जिनको आपने हाईलाइट किया था। बट दिस थिंग जब मल्टीपल जगहों से बोल्ड हो जाए एक वक्त में आपको जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा दैट इज व्हाट द इंडेक्स फिंगर बटन ऑफ द माउस अलोंग विद द कंट्रोल। पहले लाइन को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाएंगे और फिर माउस को जहां जहां पे आप ड्रैग कराते जाएंगे वहां वहां पे चीजें बोल्ड होती हैं। So now it is the bold function. Next one is the italic function. Italic means that you are going to convert the whole and the whole text. पूरे document का ये expressive place का incline toward the right side. For example, if I select this whole paragraph, I press I. Now you see it is inclined on the right side. It is the italic button, and I'm going to work on Control Z. मैं वापस आ गया हूँ। अब मैंने अगर specific line को करना है, मैंने एक जगह को सिलेक्ट कर लिया है। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस वन लाइन इनटू इटैलिक। मैंने मल्टीपल जगहों को करना है। आप सिलेक्ट दिस लाइन, आप प्रेस द बटन ऑफ कंट्रोल नाउ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नाउ आई एम प्रेसिंग आई एंड देन अब जिन जिन जगहों को मैंने इंक्लाइन कराना था उसको मैंने इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया। पर इन दिस वे आई कन्वर्टेड द मल्टीपल प्लेसेस इन इटैलिक इन अ सिंगल क्लिक। हाउ दैट वाज वर्किंग, पहली लाइन को ड्रैग किया माउस के साथ, मैंने कंट्रोल का बटन दबा लिया और फिर मैंने जिन जगहों को चेंज करना था मैंने माउस उन जगहों को सिलेक्ट करता गया जैसे मैंने समझाया। इट इज अंडरलाइन यू। अंडरलाइन यू मीन्स व्हाट? अंडरलाइन यू मीन्स अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्ड, किसी स्पेसिफिक लाइन, इवन पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इस यू अंडरलाइन को के फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन मैंने सिलेक्ट, आई हैव सिलेक्टेड दिस लाइन। नाउ आई एम प्रेसिंग
Here it is, and आप देखें तो document के नीचे पूरी line बनती है. It is a underline function, but then you are receiving a new link in 2 minutes, and then we are going to start the next class. Inshallah.